Hello everyone. We are discussing the solutions of ESE Mains 2021. Before starting the discussion, there is a basic announcement. On 12 months of subscription, additional 3 months is being provided. And those who are preparing for GATE and ESE 2023, for them a bilingual batch is being launched on 24th of November. The topic which is starting is strength of material. The problem says a cylindrical gate of 3-meter diameter and having 4-meter length is made of 60 mm thick steel sheet of 7.5 ton per meter density. The gate has a water on both its sides. The water level is up to 4 meter depth from the bottom of the gate on the left side and up to 1.5 meter depth on the right side of the gate. Determine the magnitude and the location and direction of the resultant hydrostatic force. Also determine whether the gate will float in this case or not. Okay. If the water level rises to the 3 meter on the left of the gate up to the top of the gate, determine whether the gate will float or not. If yes, then what should be the thickness of the gate to prevent it from floating. ठीक है, प्रॉब्लम है फ्लूइड मैकेनिक्स का. क्या सिचुएशन दे रखी है आपको यहाँ पे? सॉल्यूशन. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस. सो दिस इज द सिचुएशन. So ये ओरिजिनल सिचुएशन है. देयर इज अ गेट. Dia is given to you. There is water on the right side of the gate up to the depth of 1.5 meter. So this is the gate. This is the bottom level. And water is there on the other side up to the depth of, so this is 1.5 meter. 1.5 meter. This is 2 meter. So this is 2 meter. So up to the depth of 2 meter. So up to the depth of 2 meter. So depth is given to be 2 meter of water. Now this is for the reference which I have drawn. Water is not inside the gate. Gate के बाहर ही है पानी. Center of the gate is, let us suppose, O. गेट का सेंटर O मान लेते हैं. बाकी पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं इसके ऊपर. A, B, C, D. So rest of the points are also being marked. All these are reference points जो कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ेगी आगे. So reference points are being marked completely. रेफरेंस पॉइंट्स को मैंने कंप्लीटली मार्क कर लिया. अब पहले पार्ट में तो पूछ रहा है फोर्स बता दो गेट के ऊपर कितना होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं. सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन और हॉरिजॉन्टल फोर्स. फर्स्ट, ड्यू टू वाटर ऑन लेफ्ट साइड. सो फोर्स हॉरिजॉन्टल. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो लेफ्ट साइड से जो पानी है तो FHL, this will be equal to what? Gamma W H bar into area. So gamma W की वैल्यू कितनी है? 9810. H bar टोटल हाइट कितनी है? ये 2 मीटर की. ये हाइट है 1.5 मीटर की. तो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर. CG फ्रॉम द टॉप से CG कितनी दूरी पे है? टॉप से CG दूरी है 2 मीटर बाय 2 मीटर. 2 मीटर बाय 2 मीटर. एरिया कितना होगा? एरिया होगा 2 into 4. सो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टेड एरिया लेके चलेंगे. ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा. तो फोर्स आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड से. तो फोर्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड से. कैलकुलेट कर रहे थे इसे. ये न्यूटन में वैल्यू आएगी. न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन में. सो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन.
So it comes out to be 78.5 kilonewton. Direction, right hand side. So second, due to water on right side. So due to water on right side, horizontal force due to water on the right side, gamma W H bar A. So 9810. So 9810, 1.5 by 2, area 1.5 into 4, Newton converted into kilonewton. This comes out to be how much? 44.15 kilonewton. So resultant horizontal force. So resultant horizontal force can be computed now. So resultant horizontal force. So resultant horizontal force FH will be equal to 78.5 minus 44.15. So 44.15. So this comes out to be 34.35 किलो न्यूटन. कहाँ पे लग रहा है? राइट हैंड साइड पे. तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया. तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अब निकालते हैं वर्टिकल फोर्स. सो वर्टिकल फोर्स बी. वर्टिकल फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड ओवर द सरफेस. तो वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड ओवर द सरफेस. तो वर्टिकल फोर्स this will be equal to what? Gamma W into volume of the water. So volume of the water contained over the surface. So volume of the water contained over the surface. अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेन्ड ओवर द सरफेस कौन कौन सा होगा ये हमारा? सो एक तो लेफ्ट हैंड साइड से निकालना पड़ेगा, दूसरा राइट हैंड साइड से भी निकालना पड़ेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अपर डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों अपर डायरेक्शन में निकाल लेंगे. कैलकुलेट करते हैं. तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर द सरफेस दिस इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ द सेक्टर OBC प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर OCD प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इसको बोल दो आप E. सो इसको हम बोल सकते हैं E. सो दिस कैन बी टर्म्ड एज E. ठीक है, इसे बोला जा सकता है E. ठीक है, तो एक तो सेमी सर्कल बन जाएगा. सो लिखो सेक्टर सारे. सो OBC प्लस AOB प्लस एरिया AOB प्लस ट्राइंगल का एरिया EAO प्लस दूसरी तरफ सेक्टर का एरिया OCD. ये एरिया आ गई हमारी OCD. तो ये तो हमारा एरिया निकल के आया. एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? लेंथ के साथ. इनटू लेंथ ऑफ द गेट 4 मीटर. अब एरिया OBC निकाल सकते हैं. AOB निकालने के लिए मुझे कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. आई विल रिक्वायर सर्टेन पैरामीटर्स. अब कौन से पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो पहले तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा. आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल. ये एंगल ले लिया अल्फा. सो दिस एंगल इज अल्फा. अल्फा निकालना पड़ेगा हमें. तो अल्फा निकालेंगे कैसे? साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज पता है 1.5 मीटर और मुझे इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू पता है. इसको आप EO लिख सकते हो. तो ये भी अल्फा है हमारा. दिस इज ऑल्सो अल्फा. तो EO अपॉन OE. ठीक है, अगले वाले पेज पे गए. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू EO अपॉन AO. EO अपॉन AO 0.5 डिवाइड बाय 1.5. सो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. इट कम्स आउट टू बी 19.5 डिग्री. सो 19.5 डिग्री. अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं.
नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। अब कैसे कैलकुलेट करें? नाउ हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड। अब तो एरिया निकालने में कोई इशू नहीं है, एरिया निकालने में कोई इशू नहीं है। ट्रायंगल का एरिया, हाइट पता है, बेस निकाल सकते हैं। सो बेस कैन बी कंप्यूटेड। तो बेस कैलकुलेट किया जा सकता है, बेस में कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बेस के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? ए ई की वैल्यू चाहिए होगी। ए ई की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 1.414 मीटर। नाउ आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। एरिया ए ओ बी, ये है हमारा क्वाड्रेंट, पाई डी स्क्वायर बाय 4। एरिया ए ओ बी सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया कैसे निकाले हैं? अगर अगर एरिया रेडियस है 3 मीटर की, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है, रेडियस है 1.5 मीटर, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एरिया अगर मेरा पाई आर स्क्वायर है 360 डिग्री एंगल पे, डिवाइड कर दिया 1 डिग्री के लिए, हमारा एंगल कितना आ रहा था? 19.5। ये हमारे सेक्टर का एरिया आ गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गई, प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, 1.414, हाइट की वैल्यू है 0.5, और एरिया ओसीडी पाई आर स्क्वायर बाय 4। सो पाई आर स्क्वायर बाय 4 इनटू लेंथ ऑफ द गेट, लेंथ ऑफ द गेट 4 मीटर। सो लेंथ ऑफ द गेट आ गई 4 मीटर। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकल गई, गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? इफ आई मल्टीप्लाई विद दिस गामा डब्ल्यू यू विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या, डायरेक्टली फोर्स ही निकाल लेते हैं ना, इसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके। नाउ वर्टिकल फोर्स इनटू गामा डब्ल्यू 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले लिखा हुआ है गामा डब्ल्यू, तो पहले लिख देता हूँ उसको मैं गामा डब्ल्यू को। सो दिस इज 9.81। ये हमारा फोर्स आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में। फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं सबको। सो अगर इसको कैलकुलेट करें, ये 9.81 किलो न्यूटन ही लिखा है मैंने आपका डायरेक्टली रिजल्ट। सो रिजल्ट इज इन किलो न्यूटन ओनली। ठीक है, सो किलो न्यूटन में कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकल के आती है 167.5 किलो न्यूटन इन अपर डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं वो। रिजल्टेंट फोर्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एफ एच स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। एफ एच स्क्वायर पीछे निकाल लिया हमने, एफ एच कितना है 33.35, सॉरी 34.35, 34.35 का होल स्क्वायर प्लस 167.5 का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट आ जाता है 171 किलो न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अगले पेज पे गए, तो एफ हॉरिजॉन्टल आई है, एफ वर्टिकल निकल के आई है। तो एफ हॉरिजॉन्टल, एफ वर्टिकल, सो 10 अल्फा इज इक्वल टू एफ वी बाय एफ एच। यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा 10 इनवर्स एफ वी बाय एफ एच। सो 10 इनवर्स एफ ई की वैल्यू 167.5 डिवाइड बाय 34.35, 34.35 comes out to be 78.5 डिग्री। तो 78.5 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आ गया। सो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो ये हमारा सेंटर था, दिस वाज द सेंटर। तो रिजल्टेंट फोर्स पास करेगा सेंटर से नॉर्मल टू द सरफेस एट एन एंगल ऑफ 78.5 डिग्री। तो ये हमारा आ गया थीटा, सॉरी अल्फा कैलकुलेट किया ना,
तो ये हमारा आ गया अल्फा। सो दिस इज अल्फा। मैं इसको थीटा बोल देता हूँ क्योंकि अल्फा मैं पीछे यूज कर चुका हूँ एक बार। हाँ, तो इसको थीटा बोलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो दो दो अल्फा आ जाएंगे, आप कोई इशू होगा नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो टेन थीटा, सो थीटा इज टेन इनवर्स दिस। तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स है। तो लाइन ऑफ एक्शन भी निकल के आ गया, लाइन ऑफ एक्शन निकल के आ गई यहाँ से वैल्यू हमारी। तो लाइन ऑफ एक्शन इज कंप्यूटेड। सो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब नाउ वेट ऑफ द गेट। सो नाउ वेट ऑफ गेट। अब गेट का वेट कितना है? डेंसिटी ऑफ द स्टील इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 7.8 टन पर मीटर इसी डेंसिटी। 7.8 टन पर मीटर इसी डेंसिटी। पर मीटर तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इट शुड बी मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में डेंसिटी। तो 7.8 टन, टन को कन्वर्ट कर सकते हैं केजी के अंदर। सो टन को कन्वर्ट कर दिया मैंने केजी के अंदर। तो बात रही किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम 9.81। थिकनेस दे रखी है आपको। थिकनेस कितनी होगी? 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थिकनेस। सो 2 पाई आर, सो 2 पाई आर, सो 2 पाई आर। ये तो लेंथ निकल के आ गई। थिकनेस 0.06 इंटू लेंथ। ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया सिलेंडर का। इसको सिंप्लीफाई किया, इट कम्स आउट टू बी 174 किलो न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चेक कर लेते हैं वर्टिकल फोर्स कितना आ रहा था हमारा? 171, और ये आ रहा है 174, क्योंकि वेट ज्यादा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो सिंस weight of gate is more than Fe, गेट क्या नहीं करेगा? गेट विल नॉट फ्लोट, गेट विल नॉट फ्लोट। तो गेट फ्लोट नहीं करेगी। अब सेकंड पार्ट में क्या किया इसने? पानी के लेवल को बढ़ा के 3 मीटर पे कर दिया। सो द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट ही हैज डन, लेफ्ट साइड में पानी को बढ़ा के 3 मीटर तक कर दिया। तो ये सिचुएशन है। अब सेकंड पार्ट की सिचुएशन ये निकल के आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैसा का वैसा ही है, राइट हैंड साइड पे उसने पानी टॉप तक कर दिया। अब बोल रहा है राइज करेगा नहीं करेगा गेट, और अगर राइज करेगा तो बताओ थिकनेस कितनी कर दें? तो ये हमारा पानी है, दिस इज वाटर ओनली। ये तो रेफरेंस के लिए बनाया था आपके, दिस वाज फॉर रेफरेंस। ये ओ है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर। तो एफ ई चेंज हो जाएगी हमारी, दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1.5 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर। तो ये हमारा 3 मीटर आ गया। सो नाउ एफ ई इज इक्वल टू वॉट? गामा डब्ल्यू इंटू वी। तो कितने क्वाड्रेंट आ गए? 3 क्वाड्रेंट आ गए। सो गामा डब्ल्यू 9.81 किलो न्यूटन, 3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। सो वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। ये हमारी वर्टिकल फोर्स है, दिस इज अवर वर्टिकल फोर्स। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 208 किलो न्यूटन। अब ज्यादा निकल के आ रही है। सो सिंस Fe is more than weight of the gate, now it will float। अब ये फ्लोट करने लग जाएगा। पर सवाल ने क्या बोला? इसको फ्लोट नहीं कराना, तो बताओ थिकनेस कितनी हो जाएगी? सो फॉर गेट नॉट टू फ्लोट, Fe शुड बी इक्वल टू द वेट। Fe वेट के बराबर होना चाहिए, तो वर्टिकल फोर्स वेट के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। तो वर्टिकल फोर्स कितना है हमारा? वर्टिकल फोर्स है 208 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन। वेट की वैल्यू कितनी होगी? वेट की वैल्यू है 7.8 टन
कन्वर्टेड इनटू केजी, 9.81 से मल्टीप्लाई किया, न्यूटन में आ गया। वॉल्यूम कितनी होगी, पाई 2 पाई आर, so 2 pi r, so into 2 pi r, so into 2 pi r, थिकनेस निकालनी है, into 4, सिंप्लीफाई किया, थिकनेस निकल के आ गई। इट कम्स टू बी 72.1 mm। सो थिकनेस अगर गेट की 72.1 mm हो जाए 60 mm की जगह, हमारा गेट फ्लोट नहीं करेगा इन द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।